करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास। घोड़ी गारेरी मैला तीजा जिना गुरमुख त्याया तिन पूछूं जाए। गुर सेवा ते मन पत्याए। से तनवंत हर नाम कमाए। पूरे गुर ते सोजी पाए। हर हर नाम जपो मेरे भाई। गुरमुख सेवा हर घर थाए पाई रहाओ। आप पछाणै मन निर्मल होए। जीवन मुक्त हर पावै सोए। हर गुण गावै मत उत्तम होए। सहजे सहज समावै सोय। दूजे पाए ना सिवया जाय। हमें माया महाबिक खाए। पुत कोटंब ग्रह मोहया माय। मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम दिवै जन सोए। अन दिन भगत गुर शब्दी होए। गुरमत विरला पूजै कोय। नानक नाम समावै सोय। गुरमत विरला पूजै कोय। नानक नाम समावै सोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार किरपा सदका ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੌੜੀ ਗਵਾਲੀਅਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 661 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लेके अपनिया मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए आज तीसरे पातशाह तीसरे ते चौथे बंद विच ਜਿਹੜੇ वचन साडी झोली विच पाण लगे ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करिए। बख्शो असीस उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। दूजे भाई ना सेविया जाए। भाई तो भाव प्यार गुरु जी समझाते हैं। दूजे भाई जे तेनों परमात्मा तो सिवा दूसरे नाल प्यार है ता फिर तू प्रभु नु चेते नहीं कर सकता। दूजे भाई हुणे दूजा प्यार है केड़ा? गुरु अमरदास जी रोज अमृत वेले सानू समझाते हैं कि जेड़े तेरे हाथ विच माया दे नोट आंदे हैं सिर्फ वो माया नहीं है, सिर्फ वो दूजा प्यार नहीं है। हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो पदार्थ माया है जिसनू तू वरतदे हुए
प्रभु ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਪਉ ਉਪਜੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਦੋਏ ਪਾਏ ਵਿਗੁਚੀਏ, ਗੱਲ ਪਈਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਅਚੇਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਢੇਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। मन माया में फद रहियो। दूजे पाए। 30वां श्लोक। मन माया में फद रहियो, विसरियो गोबिंद नाम। किवें याद करेगा गोबिंद नु? मन ते माया विच फसिया होया है। मन माया में फद रहियो, विसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कोने काम। किसे काम नहीं आना, किसे लेखे नहीं लगना जीवन, जे तू दूजे पाए विच फसिया रहा। 31वां श्लोक। प्राणी राम न चेतई,
मद माया में अंध, तू माया विच इन्ना अन्ना होया पिया कि तू प्रभु नु चेते ही नहीं करता। 37वां श्लोक, मन माया में रम रहियो निकसत नाहिन मीत। इवें माया विच मन फसिया पिया है, ओदे विचों निकल ही नहीं रिया। नानक मूरत चितर ज्यों छाटत नाहिन पीत। जिवें एक चित्र कंध विच अंदर घुसा दिता गया, कंध विच कड़िया गया तां कंध नूं तां तोड़िया जा सकदा है, पर उस चित्र नूं कंध विचों बाहर नहीं कढिया जा सकदा। इवें मन दूजे भाई विच माया विच इन्ना मस्त हो गया कि प्रभु नूं ही भुला बैठा है। हमें माया महा बिख खाए। हमें मैं ते मैं, हमें हंकार, हमें माया जो हुने गुरु जी ने समझाया, जेड़ी सानू प्रभु नालों तोड़दी है। महा बिख खाए, एक छोटी मोटी जहर नहीं, बिख तो भाव जहर, एक बहुत बड़ी जहर है, कौड़ी जहर है, जिसनु खाके मनुख आत्मक मौते मरदा जा रहा है। गुरु नानक देव जी दे बचन हन, जाति दे क्या हथ सच परखिए, मोरा होवे हथ मरिए चखिए। मोरा तो भाव जहर, तेरी जात तेनू बचा नहीं सकती, भावें तू किन्ने भी उच्ची जात दा क्यों ना होवे, जे तेरे हाथ विच जहर होएगी तू खा जाएगा ते मर जाएगा। आज गुरु अमरदास जी बिख जहर दी गल कर रहे हैं कि हौमे ते माया दा प्यार ओ जहर है जिसनु खाके मनमुख आत्मक मौते मरदा जा रहा है। बिख बिख अमृत करतार उपाए, संसार विरक्त को दोए फल लाए। परमात्मा ने ही जहर भी बनाई है ते अमृत भी बनाया है। उन्हें साडे ते डिपेंड करता है कि असी जहर खानी है कि नाम दा अमृत चखना है। बिख दूसरा श्लोक 9वें पातशाह का, बिखियन स्यों काहे रचियो, निमक ना हुई उदास। कहो नानक पज हर मना, परे न जम की फास। बिख जहर क्यों विषय विकारा विच विख्या, विख्यन तो भाव विषय विकार, जेड़े पांच विकार हर वेले सानू अंदरों चुरा रहे हैं। 9वें पातशाह दूसरे श्लोक विच सवाल कर रहे हैं, क्यों तू जहर नाल चमड़िया होया है, निमक ना हुए उदास। एक अख झपकन दे समय लई भी तू उपराम नहीं हुंदा, तू इना विषय विकारां तो मुंह नहीं मोड़दा, तू प्रभु नु चेते नहीं करदा। निमक एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल पास के जदों तू जहर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੀ ਪਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। खाए अखर भी आया है, माया ममता मोहनी जिन विण दंता, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम। ये माया खाई जा रही है मनुख नो, अंदरों अंदर सियोंक लग जाए, लकड़ नु किवें खा के नष्ट कर देती है, इवें ही हौमे ते माया अंदरों अंदरी जहर दी तरह मनमुख नु खाई जा रही है। बिख जहर बिखे बन फीका, त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। छड़ दे जहर नो,
विखे बन फीका ये जंगल है संसार इस विच रह के नाम जप नहीं ना पंज विकार तेनु शेर चीते दी तरह खाई जाणगे विखे बन फीका फिक्के गाने क्यों खा रहा है जरा को कोई फिक्का फ्रूट खान ਨੂੰ मिल जाए उसी वेले मुंह चों बाहर कढ देईदा है जहर कुछ कौड़ा खान ਨੂੰ मिल जाए उसी वेले मुंहों बाहर कढीदा है पर पंज विकार ते तू रज रज के खा रहा है विखे बन फीका त्यागरी सखिए गुरु जी सानू अपनियां सहेलियां कह के संबोधन कर रहे हैं छड़ दे ए जहर खाना ते की खा की पी मिठा नाम पी विखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महा रस पी ओ रस चाखे देख जिड़ा इन्ना मिठा है इन्ना मिठा कि दुनियावी कोई भी पदार्थ उसकी तुलना जितना नहीं है फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ विख तो उल्ट मिठिया चीजा नाम का मिठिया चीजा तो भी मिठा है चख के ना देख फरीदा शक्कर खंड दिवात गुड़ माखियो माचा दूध सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन इन्ना मिठा है दुनिया भर दे स्वाद चख के देख ले इत्थे जहर दी गल आई है तू दुनिया भर दे मिठे स्वाद चख के देख ले तू रजेगा नहीं जदों नाम चख लेगा त्रिपत हो जाएगा रज जाएगा आन रसा जे ते चाके निमक न कृष्णा तेरी लाठे हर रस का तू चाखे साध साखत होए रहे बिस्माद पुत कुटुंब ग्रह मोया माए पुत तिया पुत्र कुटुंब ये साडा परिवार गृह जिस घर विच ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਆ ਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਨ ਮੋਹਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ मोहिया ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माया ने इवें ठग लिया कि सारियां नूं ये चंगी लगदी है घर घर विच प्रॉपर्टी दे कलेश पए होए हन कचहरियां भरियां पईयां हन जमीनां जायदादां दीयां लड़ाइयां झगड़ियां लई क्यों क्योंकि माया ने ठगिया पिया है सारियां नूं किस ही वाद काट किस ही पे सगले लाल हुआ हों बलिहारी सतगुर अपने जिन ए चलत बनाया परमात्मा ने एक खेड बनाई हुई है कि माया ने सारियां नूं ठगिया पिया है पर भगत उत्ते माया दा असर नहीं हुंदा वो माया नूं गुजरान दी तरह वरतदा है पर प्यार परमात्मा नाल करदा है इस तुक विच गुरु जी समझा रहे हन धीआं पुत्रा दे मोह परिवार ते गृह दे मोह नूं माया ने ठगिया होया है इसी गल नूं पंजवें पातशाह सोरठ राग विच 609 अंक ते समझा रहे हन पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता पुत्र तिया पुत्र कलतर स्त्री लोक रिश्तेदारी ग्रह वेद करती गल बनिता पत्नी पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया संबंध देही सारियां दा संबंध एक माया करके है
अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या असनेही, सब कुछ नाशवान है। अंत वेले ना तेरे घर ने तेरे नाल जाना है, ना तिया पुत्रा ने नाल जाना है, ना परिवार ने नाल जाना है। रे नर, फिर रे अखर आया, ओए मनुख सुन ले, काहे पपोरो देही, सारी उम्र इस शरीर ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਕਰ, शरीर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। रे नर, काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तुम बादरो, एक बाजो राम स्नेही। जिवें बदल आंदा है उड़ जांदा है, इवें तेरे श्वास जदों मुके तेरा शरीर नाशवान हो जाना है। ये माया ने जो तेनों फसाया होया है, तियां पुत्रा घर विच निकल जाए ना विचों। पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता, माया संबंध देही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या असनेही। रे नर, काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तुम बादरो, एक बाजो राम सनेही। मन मुख अंधा आवे जाई, ज्ञान तो अन्ना है मनमुख, जेड़ा गुरु दी नहीं सुनदा, अपने मन दी सुनदा है, ते नतीजा की निकलदा है, आवे जाए। 84 दे गेड़ विच बार बार भटकदा है, आवे जाए। क्यों भटकदा है? गुरु ग्रंथ साहिब जी नु पूछिए। पर तन, पर तन, पर दी निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवा गौण आवे जाए। आवा गौण होत है पुन पुन, एहो पर संग न टूटे। टुटदा ही नहीं पिया 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਗੇੜ ਮਨਮੁਖ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਧਨ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਗੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परतन परती निंदा निंदिया, जरा जिहा किसे दा अवगुण सुनिया नहीं। ऑफिस पिछों जाता है, पहले ही दोस्तां नूं फोन खड़का दिता है, अज ओदे घर इह कुछ हो गया, ओदा पुत्र जुआ खेडदे फड़िया गया, ओदी धी किसे नाल दौड़ गई, सबनों दसदा फिरदा है। तेनों पता है तेरे नाल कल नूं की होना है, तेरे बच्चियां ने की करना है। ना उछालिया कर किसे दे अवगुण, जब तक उछालता रहेगा आन जान दा गेड़ नहीं मुकेगा। परतन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवा गौन होत है पुन पुन, एहो पर संग ना टूटे। मनमुख आवे मनमुख जाए, मनमुख फिर चोटा खाए। जितने नरक से मनमुख भोगे, गुरमुख लेप न मासा है। गुरमुख ते माया दा रत्ती जिन्ना भी असर नहीं हुंदा, वो किरत करके जरूर माया कमांदा है, ज्यादा कमांदा है, पर माया विच खचत नहीं हुंदा। हर हर नाम दिव जन सोई, प्रभु अपना नाम उसनों दिंदा है जिस ते वो अपनी कृपा करदा है।
ਅਨੰਦਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋਈ। फिर वो भगत भक्ति कर करके गुरु दे शब्द नाल जुड़ जाता है। अन दिन तो पाप हर रोज वो इन्नी भक्ति करता है, इन्नी भक्ति करता है कि परमात्मा उदे तो खुश हो जाता है। इन्नी भक्ति कीती बिदर ने कि कृष्ण जी और तो इन्ने खुश हुए कि आज चौथे पातशाह ने सूही राग विच 733 अंक ते हरमंदर साहिब तो सारी मनुखता नु समझा दिता कि जे भगत गरीब भी होए, नीवी जात दा क्यों भी ना होए, लोग उसनु छीपा भी क्यों ना कहंदे होन, पर प्रभु अपने भगत तो ही खुश हुंदा है। आज गुरु रामदास जी ने बिदर दी गल कीती शुरुआत विच, फिर भगत रविदास जी दी गल कीती, लोग उसनु चमार आखदे हन, पर पंजवें पातशाह ने उन्हां दे 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज कीते हन। भगत नामदेव जी नु लोग छीपा आखदे हन, पर परमात्मा ने ब्राह्मणां नु ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਨ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ ਬਿਦਰ, गरीब सन। पूछो बिदर दासी सुते, किशन उतरिया कर जिस जाए। दुर्योधन दे घर नहीं गए कृष्ण जी, महल माड़ियां हन उसदियां, पर किदे घर गए? बिदर गरीब भगत दे घर गए, क्योंकि उसने भगती कीती कृष्ण जी दी। बिदर दा जिक्र भाई गुरदास जी ने अपनी 10वीं वार दी 7वीं पौड़ी विच कीता है। पूछया दुर्योधन ने कृष्ण जी नो, मेरिया महल माड़ियां नु छड़ के, मेरे 36 प्रकार दे भोजन नु छड़ के, मेरे इन्ने सोने बिस्तरे विछे हीरे जवाहरातां वाले पलकां नु छड़ के, तुसी कखां दे छप्पड़ दी कुली विच क्यों गए? पूछया सी। जवाब दिता कृष्ण जी ने, क्यों गया मैं ओदे घर? गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਭਗਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ना तू आवे बस बहुत घिनावने, कोई विखावे दे तरले पाई जाए, प्रभु उसदे बस विच नहीं आंदा। ना तू आवे बस वेद पढ़ावने, ना तू आवे बस तीरथ नाइए। कितनियां आसान शब्दावलियां हन। ना तू आवे बस तीरथ नाइए, ना तू आवे बस धरती ढाइए। कोई सारी धरती दा भ्रमण कर ले, जिन्ने मर्जी तीर्थां ते चले जाए, प्रभु उसदे बस विच नहीं आंदा। ना तू आवे बस किते सियाणपे, ना तू आवे बस बहुता दान दे। तू भगतां के बस अन दिन, जेड़ा रोज ओदी भगती करेगा, तू भगतां के बस भगतां तान तेरा। सबको तेरे बस अगम अगोचरा, तू भगतां के बस भगतां तान तेरा। गुरमत विरला बूझे कोई। पर इस गल नूं सारे नहीं समझदे। कोई विरला विरला करोड़ां विचों एक कोटन में नानक को, नारायण जे जीत
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10,000 ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर हर जन दोय एक है, विव विचार कछ नाहि। चलते उपज तरंग ज्यों, जल ही विखे समाए। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ। ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਰੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅਨ ਪਾਣੀ ਮਚ ਉਪਾਏ।